Hello everyone, this is Shivam Devedi and here we are discussing about 2020's most dramatic event in the political scenario, that is Maharashtra political crisis. Yeah. I know you guys are like कि सर ये तो काफी पुराना हो गया, right? But don't worry, this is not that we are going to take. We are not getting into the political stuff. We are not getting into the politics, how the things happen. हम किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल लीडर के कमेंट्री पे नहीं जाएंगे. We are going to see this particular issue from the perspective, from the point of view of our exam, that is CLAT. राइट सो अगर आपको ये लग रहा है कि ये टॉपिक पुराना हो गया है तो आई एम प्रीटी श्योर आपने जिस भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से, जिस भी क्या कहना चाहिए वेबसाइट से, या जिस भी पर्टिकुलर वीडियो से देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर दैट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल सिनेरियो, ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. We are strictly going to be CLAT oriented. So without wasting any more second, let's get into the stuff. Maharashtra political crisis. Right? You are well aware what exactly happened. How Mahavikas Aghadi, how Eknath Shinde, how Devendra Fadnavis, how Uddhav Thackeray, things happened, right? Terrible turns of event कह सकते हैं. एक well functioning government के साथ suddenly that started कि जो former chief minister थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद कुछ जो एमएलएस थे उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया. लेटर दे वर इन गुजरात, देन दे वर इन असम, एंड देन उसके बाद वो पहुंचे गोवा, एंड अल्टीमेटली दे केम टू महाराष्ट्र, मुंबई, एंड वहां पे फ्लोर टेस्ट, बाकी सारी चीजें हुई. अल्टीमेटली the result came out that was Eknath Shinde who becomes the chief minister of Maharashtra with the help of a Bharatiya Janata Party MLAs. राइट सो ये था एंटायर पर्टिकुलर सिनेरियो जो पॉलिटिकल उसमें हुआ, कंक्लूजन जिसके केस में. टाइमलाइन जो है वो 21 जून से स्टार्ट हुई थी जब 11 एमएलएस मिसिंग थे. लेटर ऑन दैट काउंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली and ultimately close to 45 MLAs were in the team of Eknath Shinde, right? कुछ स्पेशल पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज है जो क्लैट परसेप्शन से आपको ध्यान रखना है. इन दिस बिटवीन लाइक इवेंट one of the MLA that actually mentioned the name of a new political party, that was Shiv Sena Bala Sahib, right? And ultimately the Uddhav Thackeray resigned as the chief minister of Maharashtra and Eknath Shinde took the oath of chief minister of Maharashtra. Right, and make sure to understand the event that happened, right? That was completely political, but we are getting into the थिंग जो हमारे क्लैट के परसेप्शन से, राइट. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो इवेंट हुए वो आपको पता है, सो क्लैट के उससे जाते हैं. नाउ जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है कि किसी भी एक वेल फंक्शनिंग स्टेट गवर्नमेंट में कुछ पर्टिकुलर ऐसे इवेंट्स हो जाए जिसमें वो गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी में आने की तरफ हो, और the opposition claims to have the majority vote and the functioning government is in minority, right? Or some else kind of thing, 2% becomes very important in this kind of scenario. Number one is governor, number two is speaker. You are well aware about the powers of speaker. Speaker is actually अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो पीठासीन अधिकारी हैं उस असेंबली की. असेंबली के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते उनके पास अथॉरिटी होती है. बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ा जो पर्टिकुलर वो होता है, पर्सन होता है, दैट इज गवर्नर. सो व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन, यहाँ पे दो स्पेसिफिक चीजें जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है. वन इज ऑफ गवर्नर, one is of the power of speaker. Now, when we get into the political constitutional aspects, constitutional provisions, Article 174, 175, 163, these are the three articles that becomes very important in this scenario. Article 174 provides the authority to governor to summon, right, the state legislative assembly to dissolve, to like prorogue the assembly, etc. Right. Article 174b gives the power to governor to dissolve the assembly on the aid and advice of cabinet. However, जो particular term है उसको ध्यान से सुनना. However, the governor can apply his mind when the advice came from a chief minister whose majority could be in doubt. Yes. So if opposition is claiming कि हमारे पास मेजॉरिटी वोट है, जो गवर्नमेंट है उसके पास नहीं है, at that time the governor can function this kind of power according to his mind कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास ऐसी ऐसी चीजें आप बोल रहे हैं तो मैं हो सकता है डिसॉल्व करूं, हो सकता है डिसॉल्व ना करूं, राइट. 175 2
right? Governor can summon the house and call for the floor test to prove whether the government has the numbers or not. Yes, अगर असेंबली फंक्शनिंग में नहीं है, अगर असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, at that time governor becomes the supreme authority who can call the house for a floor test. And you are aware about floor test कि भैया मैं फ्लोर टेस्ट अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं मेरे साथी एमएलएज या एमपीज जो है वो वोट करेंगे मेरी गवर्नमेंट के फेवर में, right? So if the favors wins, that means I want the majority vote, मेरी गवर्नमेंट फंक्शनिंग रहेगी. अगर वो नहीं होता तो फिर मेरी गवर्नमेंट जो है गिर जाती है, एंड दूसरा जो मेजोरिटी वोट वाला होता है उसकी गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग हो जाती है, राइट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, गवर्नर के जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए प्रोविजन होता है कि प्रेसिडेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. वैसे ही आर्टिकल 163 गवर्नर को इस तरीके की एक्सरसाइजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एडवाइस होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर के साथ. So these are some important constitutional provisions that you should understand, जो सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास क्लैट के पैसेज के बाद आ सकते हैं. Now, anti-defection law. Yes, दल बदल कानून. You are aware about that one MLA Ayaram Gayaram wala case who changed like three political parties 3 times within a day, right? Now that's like taking medicine. कि डॉक्टर ने बोला दिन में 3 बार लेने का, तो उन्होंने सीधे तौर पे बोला मैं 3 बार पार्टी कर लूंगा. So after that kind of thing, when it comes to like Rajiv Gandhi government in 1985, they decided to have a proper law on this. कि ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को जनता चुने. यस, दैट्स डेमोक्रेसी, नो? कि जनता इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है. But the other party plays a different role, a different kind of scenario. They do such kind of words like horse trading और MLAs को अपनी तरफ खींचना, etc. etc. And government का, sorry, जनता का जो जनमत था, जनता की जो डिसीजन थी, उसको पलट के दूसरी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ पावर में ला देना. तो द राजीव गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैव दिस काइंड ऑफ लॉ, right? And this kind of law was there for certain kind of reason. They are having certain provision कि किस कंडीशन में ये डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा, किस कंडीशन में दल बदल नहीं माना जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ध्यान रखेंगे. इट वाज 1985 व्हेन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड. आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिस पे हम बात कर रहे हैं, राइट? कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे लास्ट ईयर मेघालय में 12 आउट ऑफ 17 कांग्रेस एमएलए जॉइंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, है ना? इन 2019 6 एमएलएज ऑफ बहुजन समाज पार्टी इन राजस्थान जॉइंड कांग्रेस. सेम ईयर तेलुगु देशम के साथ भी राज्यसभा में यही हुआ, जो राज्यसभा एमपी थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली. तो देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर कंडीशंस जिस पे हम बात करते हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 2/3 लॉ. यस, 1985 का जब एक्ट आया था, तो डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसीडर्ड एज अ मर्जर. सो अगर 100 एमएलएज हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के और 1/3 जो है वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसे मर्जर माना जाएगा, राइट? उसे दल बदल के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. In 91st Constitutional Amendment in 2003, it was changed to 2/3 member of political party. Yes, so now आउट ऑफ 100 2/3 अगर चाहते हैं तब उसे क्या माना जाएगा? वैलिड मर्जर माना जाएगा, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा. जस्ट मेक श्योर दिस पर्टिकुलर 2/3 लॉ केम इनटू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003. सो मेरे साथ अगर 100 भाई लोग हैं और उनमें से 67 68 मेरी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं मासूम कुछ नहीं कर सकता, इसे मर्जर माना जाएगा और वो एमएलएस डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, जो ये दल बदल या एंटी डिफेक्शन का बेस होगा, उसको चेयरमैन या स्पीकर जो है वो रखेगा. जो जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू का जो सब्जेक्ट है, उसकी अथॉरिटी आपको चेयरमैन या स्पीकर के पास मिलेगी, राइट? एंड द नेगेटिव पार्ट, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि डिफेक्शन केस को कब जाके आपको क्या करना, सॉल्व कर देना है, राइट? सो दैट वाज 2/3 लॉ या 2/3 लॉ जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो तैयार होता है कि कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन होगा, कौन सा नहीं होगा, राइट? फ्लोर टेस्ट ऑन स्पॉटलाइट. यस चलो, ये तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो किस तरीके से टेक केयर होगा, क्योंकि उस टाइम पे स्पीकर नहीं था महाराष्ट्र असेंबली में,
राइट, स्पीकर का डेजिग्नेशन खाली था, राइट। तो अब इस टाइम पे गवर्नर अपनी पावर जो है वो यूज करेंगे। I told you that speaker governor becomes very important at this point. So if speaker is absent, that means governor is going to take the charge, और वो अपने पावर्स यूज करके फ्लो टेस्ट के लिए असेंबली को समन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है वो आपको 2020 का देखने को मिलता है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान अदर्स, है ना, वर्सेस स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिला था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ कुछ पर्टिकुलर एमएलए ऐसे थे जिन्होंने रिजाइन करने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। फ्लो टेस्ट की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी। तब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया था, एक डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था द गवर्नमेंट इज नॉट डिडंट ऑफ पावर टू ऑर्डर अ फ्लो टेस्ट वेयर on the basis of material available to the governor, it becomes evident that the issue as whether the government commands the confidence of house requires to be assessed on the basis of flow test। और ये किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। कब, जब स्पीकर नहीं। सो ये बात उन्होंने आगे की कि व्हेन द हाउस इन द सेशन, है ना, हाउस इज इन द सेशन, द स्पीकर हैज राइट टू कॉल द फ्लो टेस्ट। बट अगर हाउस नहीं है, असेंबली जो है सेशन में नहीं है, तो जो गवर्नर है अपने रेजिडुअल पावर यूज करके अंडर आर्टिकल 163 क्या कर सकते हैं, फ्लो टेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। सो फ्लो टेस्ट के रिगार्डिंग जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट केस है और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। नाउ जो भी हुआ, फ्लो टेस्ट एकनाथ शिंदे और उनकी गवर्नमेंट ने जीत लिया, राइट। और जो भी पर्टिकुलर लीडर्स थे, जो भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव थे शिवसेना एमएलए के थ्रू, चाहे पार्टी के लीडर हो चाहे दूसरी चीजों, उन्हें हटाया गया, राइट। एंड जो राहुल नार्वेकर है उन्हें नया स्पीकर इलेक्ट किया गया। एंड अब जो भी पर्टिकुलर चीजें थी, डिस्क्वालिफिकेशन, बाकी सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में थी, उसका डिसीजन भी आ चुका है, right। Supreme Court on disqualification of MLAs on Maharashtra Legislative Assembly 11 जुलाई को उन्होंने बोला कि स्पीकर, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग जो है शिवसेना एमएलए के साथ वो ऑनगोइंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कैंसिल की जाती है। द कोर्ट डायरेक्टेड न्यू इलेक्टेड स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली नॉट टू डिसाइड on the disqualification notice till the court rules on them। So अब ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला काम चल रहा है। Rest other is simply said, Maharashtra Assembly is continuously functioning. We have a new chief minister, we have a new speaker. So इनके नाम इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। So let's get back to one of the type of question की कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो थे उनकी बात की थी, स्पीकर, गवर्नर और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अथॉरिटी से। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की थी, 2/3 लॉ की, 2/3 लॉ की बात की थी, है ना। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं, जैसे एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो एक कोई है जिनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। आपको पता है तो नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो नए स्पीकर हैं एंड अदर थिंग, एक इंपॉर्टेंट केस भी अपन ने डिस्कस किया था, शिवराज सिंह चौहान एंड अदर्स वर्सेस द स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स, राइट, जिसमें 2020 का डिसीजन था। So this is all about the Maharashtra political crisis from the point of view of CLAT exam, right? I hope you got all the important point. I hope you got all the good information that you are that is important for you all, right? Make sure to make notes. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Make sure to stay motivated and stay positive for your studies. Take care. अगली वीडियो मिलते हैं। See ya.